Hello, my dear students. We'll discuss today the nutrition in plants. In the previous classes, we had discussed the nutrition in human beings, the nutrition in amoeba. We'll discuss today the nutrition in plants. And the study of these life processes is known as physiology. So we'll discuss today the physiology of nutrition in plants and how the physiology of nutrition in plants is different from human beings and the simple form of organism like amoeba. So we'll discuss the details of nutrition in plants. Nutrition in plants, it is a photoautotrophic nutrition. The nutrition in plants, it is the photoautotrophic nutrition. Plants have autotrophic nutrition. This is what? The self-nourishment. The plants can make their organic food, they can synthesize their organic food from the simple inorganic raw materials, and that is known as autotrophic nutrition. Plants performs this autotrophic nutrition with the help of light energy, and the photo is the word, it stands for light energy. So plants, they perform their autotrophic nutrition with the help of light energy. So plants have photoautotrophic nutrition. Plants performs this photoautotrophic nutrition by the process known as photosynthesis. फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक चेंज है, ये एक एनाबॉलिक चेंज है, ये एक कंस्ट्रक्टिव चेंज है, एंड एवरी कंस्ट्रक्टिव चेंज नीड द एनर्जी. व्हाट हैपन्स इन फोटोसिंथेसिस? प्लांट्स by making the use of raw materials CO2 and H2O with the help of light energy and the green colored pigment chlorophyll that is present in plant leaves, they make their food glucose. Glucose is the main product of photosynthesis. It is the main product of photosynthesis. साथ में ऑक्सीजन और वाटर रिलीज होगा. These are side products और these are byproducts of photosynthesis. ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट्स और द साइड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. 1 मार्क में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं कि फ्रॉम वेयर प्लांट्स टेक CO2. प्लांट्स टेक CO2 फ्रॉम एयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. From where plants takes water? Plants takes water from soil by the process of osmosis. और फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की जरूरत है. लाइट चाहे सन की हो, चाहे लाइट ट्यूबलाइट की हो, चाहे लाइट बल्ब की हो. हाँ, सनलाइट है, इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए हम सनलाइट बोल देते हैं. लेकिन प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए दे नीड द लाइट एनर्जी, और वो लाइट एनर्जी आप सन की दे सकते हैं, बल्ब की दे सकते हैं, ट्यूबलाइट की दे सकते हैं. तो यू से ओनली द लाइट एनर्जी. द photosynthesis can only be performed by plants because plants have a green colored pigment chlorophyll that is present in leaves. क्लोरोफिल वैसे 5 तरह का है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, इनकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है.
The main product of photosynthesis is glucose, and oxygen and water are released as side products. तो ये फोटोसिंथेसिस का एक इंट्रोडक्शन है. The photosynthetic pigment, it is chlorophyll, जो अभी हमने डिस्कस किया. The site of photosynthesis is chloroplast. Chloroplast एक टाइप ऑफ प्लास्टिड है, ये ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड है. It is present in the plant leaves. It is a double membrane bound cell organelle, जहां पर फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में होता है. अब बेटा हम क्या डिस्कस करेंगे कि विल टेक द प्लांट लीव्स. हम प्लांट लीव्स का ट्रांसफर सेक्शन करेंगे. और जो लीफ है, लीफ की ऊपर की परत से लेके नीचे की परत तक हम उसका ट्रांसफर सेक्शन करते हुए जाएंगे और देखेंगे कि ऊपर से नीचे तक जाते हैं तो लीव्स के कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ताकि हम पहुंचेंगे कि वेयर एक्चुअली द क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है. So we'll go into the details of chloroplast. अब ये यहां पर आपको स्टोमेटा के डायग्राम्स दिखा रखे हैं. स्टोमा सिंगुलर है, स्टोमेटा प्लूरल है. दीज आर द पोर्स, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट लीव्स. By opening and closing these pores, the stomata, plants loses their excess of water. Plants, they releases the oxygen, which is the byproduct of photosynthesis, and plants also take the CO2 that is required for photosynthesis. हम ये कहें कि ऑक्सीजन का, CO2 का, वाटर का, एनवायरमेंट के साथ में प्लांट्स का एक्सचेंज जो होता है वो थ्रू द स्टोमेटा होता है. These are the pores, they are present in the plant leaves. ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज स्टोमेटा है. स्टोमेटा ये पोर है, इट इज स्टोमेटल पोर. और this pore is controlled by the kidney shaped cells. These are the guard cells. These are the guard cells. The cells are having the nucleus. तो ये न्यूक्लियस है. The cells are having cytoplasm. तो ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म है. Plant cells are having vacuole, and the plant cells are generally have the single large vacuole to make the cells turgid. तो ये vacuoles हैं. और ये जो चारों ओर हैं ये एपिडर्मल सेल्स हैं जो चारों ओर से कवर करती है. और these are chloroplast. These are chloroplast. These are chloroplast. ये chloroplast. फोटोसिंथेसिस इस क्लोरोप्लास्ट में होती है. क्लोरोप्लास्ट एक टाइप ऑफ प्लास्टिड है, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड है. इट इज नॉन एज किचन ऑफ द सेल. कि प्लांट्स है वो अपना खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर. इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को बोला गया है किचन ऑफ द सेल. क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज हैं. दे आर द स्ट्रेंज ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल because chloroplast they are the semi autonomous, they are semi autonomous cell organelle, or these are strange
organelle of cell because they have their own DNA and ribosomes. इसीलिए बोला इनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनलीज और द स्ट्रेंज ऑर्गेनलीज ऑफ द सेल. स्टोमेटा ओपन है ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए, वाटर लॉस करने के लिए, ट्रांसपिरेशन करने के लिए और CO2 को लेने के लिए. स्टोमेटा ओपन कब होगा? स्टोमेटा ओपन कब होगा? जब टर्जर प्रेशर है वो हाई हो जाएगा, तब स्टोमेटा ओपन हो जाएगा. और जब टर्जर प्रेशर लो हो जाएगा तो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएंगे. ओके, तो ये मैंने आपको स्टोमेटा के अंदर क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर है थोड़ा सा शो करने की कोशिश करी है. अब हम चलते हैं आगे, दैट इज क्लोरोप्लास्ट लीफ में आपको कहाँ पर मिलेगा. These are plant leaves. लीफ की ऊपर की सरफेस वो अपर एपिडर्मीज है और नीचे की सरफेस वो लोअर एपिडर्मीज है. अब लीफ का हमने क्या ट्रांसफर सेक्शन किया, दैट इज ऊपर से नीचे जब उसको काटा तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा. ये है अपर एपिडर्मीज, दिस इज अपर एपिडर्मीज, इट इज अपर एपिडर्मी. अपर एपिडर्मी पे थोड़ी चमक होती है, ग्लोसी होती है. किसके कारण? क्यूटिकल के कारण. किसके कारण? क्यूटिकल के कारण. इट इज द वैक्सी क्यूटिकल. यहां पर है वैक्सी क्यूटिकल. ये प्लांट्स के अंदर एक एडेप्टेशन है to minimize the loss of water. ये है lower epidermis. This is what lower epidermis. upper epidermis और lower epidermis के बीच में एक soft tissue है, ये मेसोफिल है, जिसके अंदर पेलिसेड पैरेन्काइमा है और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है. Towards the lower epidermis, the stomata are present. Stomata are the pores through which plants do transpiration. The loss of water from plant leaves in the form of vapor is known as transpiration. And also they carry out the diffusion of gases. That is what? They release oxygen and they take CO2. अब हमने यहाँ पर जो मेसोफिल है उसके बीच में से हमने अंदर से उठाया तो आपको मिलेगा क्लोरोप्लास्ट. और क्लोरोप्लास्ट को फिर हमने यहाँ पर डिटेल में आपको एक्सपोज करके दिखा रखा है. क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है. दीज आर द टू लेयर्स. क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है. ये इसका आउटर, ये डबल मेम्ब्रेन है. दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज व्हाट द इनर मेम्ब्रेन. क्लोरोप्लास्ट के अंदर वी हैव द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब जैसे 5-5 रुपए के सिक्के हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, वो थाइलेकॉइड्स हैं. एंड द स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड्स, स्टैक बोले तो ढेर, द स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड्स, स्टैक बोलो या पाइल बोलो. द स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड्स और द पाइल ऑफ थाइलेकॉइड्स, दिस इज नॉन एज ग्रेनम. दिस इज नॉन एज ग्रेनम, जो रेड कलर के बॉक्स में आपको दिखा रखा है. एंड ग्रेनम सिंगुलर है और ग्रेना प्लूरल है. और बीच बीच में ग्राउंड सब्सटेंस है. दिस ग्राउंड सब्सटेंस इज नॉन स्ट्रोमा. एक्चुअल में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो थाइलेकॉइड्स
या ग्रेनम बोल दो, क्योंकि थाइलेकॉइड्स और ग्रेनम तो एक ही बात है। अरे भाई एक सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर वो थाइलेकॉइड है एंड द स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड्स वो ग्रेनम है, और जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो है स्ट्रोमा। सो व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? द ग्रेनम और द थाइलेकॉइड एंड स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एक्चुअल में जो फोटोसिंथेसिस होगा वो थाइलेकॉइड या ग्रेनम बोल दो एंड स्ट्रोमा, यहां पर फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में होगा। लीफ का जो टीएस है उसको और प्रॉपर्ली यहां पे इस पिक्चर में एक्सप्लेन किया गया है कि ऊपर एक वैक्स शाइनी ग्लॉसी अपीयरेंस जो लीफ पे होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ वैक्सी क्यूटिकल, दैट इज बिकॉज ऑफ वैक्सी क्यूटिकल। देन वी हैव अपर एपिडर्मिस, ये है लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस के बीच में ये मेसोफिल है, दैट इज मेड अप ऑफ पेलिसेड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। Towards the lower epidermis, there are the pores, and that is what stomata. The question is कि इस पिक्चर के अंदर मैं आपको बार बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो स्टोमेटा है they are present towards lower epidermis. Why the stomata are present towards lower epidermis? That is to minimize the loss of water and to carry out the photosynthesis in the efficient way. इसका कारण ये है कि अपर एपिडर्मिस के ऊपर जो सनलाइट है सोलर एनर्जी डायरेक्ट गिरती है, और सोलर एनर्जी डायरेक्ट गिरेगी तो बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, वाटर लॉस ज़्यादा होगा, बट जमीन के अंदर पानी लिमिटेड है। और प्लांट को अपने आप को जिंदा रखना है टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर। Over the epidermis, there is the waxy secretion of cuticle to reduce transpiration. But on the same part, plants, they have to carry out transpiration to maintain temperature, and they have to carry out the diffusion of gases to do photosynthesis. So the more number of stomata are present on lower epidermis ताकि वाटर लॉस को मिनिमाइज किया जा सके और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को किया जा सके। तो ये प्लांट्स के अंदर एक एडेप्टेशन है टू सर्वाइव इनटू द नेचर। नेचर में सर्वाइव करने के लिए प्लांट्स ऐसा करते हैं। जिनके पास में ब्रेन नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि भगवान ने उनको इंटेलेक्ट नहीं दिया है, इसलिए प्लांट्स अच्छे से जी रहे हैं। हमें इंटेलेक्ट दिया है, पता है कि कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, हमें भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं जाना चाहिए, हमें मास्क पहनना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, फिर भी हम सावधानी नहीं बरत रहे हैं। बावजूद किसके कि आपके पास में नर्वस सिस्टम है, आपके पास में ब्रेन है, और इसी कारण कोरोना है आज इंडिया के अंदर अनकंट्रोल्ड स्टेज पे है। इतने लोग मर रहे हैं, किसी का बेटा बिछड़ गया है। आज मुझे पता चला है कि हमारे एकेडमी का एक स्टूडेंट है, उसकी मम्मी है, वो अभी 2 महीने पहले बिकॉज ऑफ कोरोना इस दुनिया को छोड़ गई थी। और आज हमारा हर्षित नाम का एक स्टूडेंट है, बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन आफ्टर कोविड वो भी आज दुनिया को छोड़ के चला गया है। दुख की बात है, वी कैन नॉट एक्सप्लेन एंड पुट इन वर्ड्स। मिस्टर रोहित सरदाना, द फेमस न्यूज रीडर एंड द एंकर ऑफ द चैनल आज तक, वो भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए बिकॉज ऑफ कोरोना। ही वॉज माई क्लोज पर्सन। तो सभी लोगों से अपील है
कि प्लांट्स को नर्वस सिस्टम नहीं दिया है, उनके पास इंटेलेक्ट डेवलप नहीं हुआ है, वो अच्छे से जी रहे हैं, उन पर कोरोना का इफेक्ट नहीं है। हमारे को भगवान ने नर्वस सिस्टम दिया है, एक इंटेलेक्ट दिया है, तो इस कोरोना से बचने की कोशिश करें। और जिस तरह से डेथ हो रही है, चारों ओर दुख फैला हुआ है, समझ जाना चाहिए कि नेचर का हथियार चल रहा है, भगवान से डरना चाहिए। जो लोग चीट करते हैं, फरेब करते हैं बिजनेस में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, उनको ये सब छोड़ देना चाहिए और एक सिंपल लाइफ में आ जाना चाहिए जो भगवान के दरबार में जस्टिफाइड हो। तो ये मैसेज भी इस लेक्चर के साथ में एक आम पब्लिक तक मैं देना चाहूँगा कि हमारे एक्ट ऐसे हों कि एटलीस्ट भगवान है वो हमें मर्सी दे। सो दिस इज ऑल अबाउट कि व्हाई द मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन लोअर एपिडर्मिस। दिस इज द adaptation in the plants to minimize the loss of water and to survive। अब आप ये देखें, इस लीफ का जो अपर सरफेस है वो ग्लोसी है। दैट इज बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ वैक्सी क्यूटिकल, दैट इज टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर, जो अभी हमने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया। नाउ the mechanism of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस एक इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस एक इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है। ये एक इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है। इट अकर्स इन 10⁻⁻12 सेकेंड्स कि लाइट प्लांट्स पे गिरी और फोटोसिंथेसिस हुआ। ये बहुत छोटा टाइम है भाई, एक के नीचे एक और 12 जीरो लगा दो सेकंड का, इतना छोटा हिस्सा है ये। इट्स अ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। We'll discuss the mechanism of photosynthesis और मैकेनिज्म डिस्कस करने के बाद में हम देखेंगे पब्लिक रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस क्या मैसेज देती है और किस तरह से वो गलत है और किस तरह से सही है। Photosynthesis, it occurs in two phases. The light reaction, after the name of the scientist, this is known as Hill reaction. Dark reaction, this is what the Kelvin-Benson cycle. जनरली लोग ऐसा सोचते हैं, पब्लिक ऐसा सोचती है कि लाइट रिएक्शन ये लाइट डिपेंडेंट फेज है, तो इसको होने के लिए लाइट चाहिए, तो ये फेज है वो दिन में होती है, और डार्क रिएक्शन है उसको होने के लिए लाइट की जरूरत नहीं है, तो ये फेज रात में होती है। ऐसा बोलते हैं बच्चे, बोलते हैं कि टीचर ने ऐसा बताया है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। फोटोसिंथेसिस एक इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है। इट अकर्स इन 10⁻⁻12 सेकेंड, जो बहुत छोटा टाइम है। कैसे पॉसिबल है कि लाइट रिएक्शन दिन में हो और डार्क रिएक्शन रात में हो? पॉसिबल नहीं है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों ही दिन में होती है। फर्क इतना है कि लाइट रिएक्शन इट मेक्स द यूज ऑफ लाइट एनर्जी एंड डार्क रिएक्शन डज नॉट मेक्स द यूज ऑफ लाइट एनर्जी ऑल्दो द लाइट इज अवेलेबल। अरे भाई, आपको भूख है 3 रोटी खाने की और घर में 10 रोटी बनी हुई है, तो आप 10 के 10 रोटी थोड़ी खाओगे। ऑल्दो द 10 रोटी इज अवेलेबल बट यू ईट 3 रोटी। तो ये सिर्फ ये है। हाँ, जो डेजर्ट प्लांट्स है, टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर
वो लाइट रिएक्शन को दिन में करते हैं और डार्क रिएक्शन को होल्ड कर लेते हैं, उसको रात में करते हैं. दैट इज टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर. नाउ विल गो इनटू द डिटेल्स. Light reaction is the photochemical phase because it occurs with the help of light energy. इसको होने के लिए लाइट की जरूरत है. And dark reaction is the biosynthetic phase because it is enzyme controlled reaction. Light reaction light dependent phase है, dark reaction light independent phase है. It is enzyme controlled reaction. लाइट रिएक्शन होता कैसे है, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं. फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस इन विच प्लांट्स बाय टेकिंग द रॉ मटेरियल CO2 एंड H2O विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी एंड द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल एंड द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट chlorophyll, they make their food, that is what? Glucose. It is the main product of photosynthesis. Oxygen and water are released as side products. क्यों बताया मैंने आपको? ये लाइट रिएक्शन का मैकेनिज्म चल रहा है. लाइट रिएक्शन मेक्स द यूज ऑफ वाटर एज ए रॉ मटेरियल. As the sunlight energy falls on green plants, the pigment chlorophyll, it absorbs the sunlight energy, and by the light energy the water molecules, they breaks into H plus ions and OH minus ions, and this is known as photolysis of water. फोटो यानी लाइट एंड लिसिस यानी ब्रेकिंग ऑफ. ब्रेकिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू रेस्पेक्टिव आयंस इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर. Then by the series of chemical reactions, these OH minus ions, they converts into H2O2. It is hydrogen peroxide. ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ये टूट जाएगा वाटर एंड ऑक्सीजन में. वाटर एंड ऑक्सीजन, दीज आर द साइड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. यहाँ से आपको एक कंक्लूजन मिलता है. The raw material water is used by light reaction, and by the end of the light reaction, oxygen and water, which are the side products and the byproducts of photosynthesis, they are released. यहाँ तक लाइट रिएक्शन जो भी करता है वो खुद के लिए करता है. अब आगे जो लाइट रिएक्शन करेगा वो डार्क रिएक्शन के लिए तैयारियां करता है, प्रिपरेशंस करता है. वो किस तरह से? ADP, it is adenosine diphosphate. It is a low grade energy molecule. This is the low grade energy molecule. By combining with inorganic phosphate, it forms ATP, and this is the high grade energy molecule, and this is known as photophosphorylation. The conversion of low grade energy molecules into high grade energy molecules, that was ATP. The conversion of ADP into ATP is known as photophosphorylation. These ATP molecules are used in dark reaction because dark reaction does not make the use of light energy. But dark reaction को होने के लिए एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ATP से मिलेगी. क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक चेंज है, ये कंस्ट्रक्टिव चेंज है. इट नीड द एनर्जी. NADP, it is nicotinamide dinucleotide phosphate. This is nicotinamide dinucleotide phosphate. It combines with H plus ions, जो ये वाले बचे हुए हैं, and form NADPH. It is nicotinamide dinucleotide hydrogen phosphate. Nicotinamide dinucleotide hydrogen phosphate. They act as a reducing agent. They act as a reducing agent for dark reaction. क्योंकि dark reaction होएगी by the process of reduction. So
एटीपी और एनएडीपीएच जो लाइट रिएक्शन ने बनाए हैं वो डार्क रिएक्शन को होने के लिए रिक्वायर्ड है। एंड विल डिस्कस नाउ कि डार्क रिएक्शन होती किस तरह से है। ये डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन मेक्स द यूज ऑफ CO2 as a raw material. Dark reaction occurs by the energy of ATP, which is released by light reaction, by the reducing power of NADPH, that is released by light reaction, by the enzymatic action of RUBP, ribulose biphosphate, by the enzymatic action of RUBP, ribulose biphosphate, the CO2 is fixed in tau. It is fixed in tau or reduced into glucose. ADP ये रीजनरेट होगा, रीयूज हो जाएगा। NADPH ये रीजनरेट होगा, रीयूज हो जाएगा। RUBP एक एंजाइम है। Enzymes are involved in the chemical reaction and by the end of the chemical reaction the enzymes are released. ये हमारा फोटोसिंथेसिस है कि फोटोसिंथेसिस में फाइनली ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज बन गया है। लिखा हुआ है साइट इज थाइलेकॉइड या ग्रेनम और ग्रेना। तो आपको पूछेगा व्हाट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन? इट इज व्हाट थाइलेकॉइड एंड द स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड्स इज नोन ए ग्रेनम। ग्रेनम सिंगुलर है और ग्रेना प्लूरल है। एंड द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इज स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये मैंने स्लाइड क्लीन कर दिया, आप देख लें। So this is all about the mechanism of photosynthesis. ये 3 नंबर का एक important question पूछा जाता है, explain the mechanism of photosynthesis. तो for the CBSE part जितना required है वो हमने discuss कर लिया है। अब थोड़ा सा हम extra discuss करेंगे that comes under foundation part, factors affecting rate of photosynthesis। कि हमारी जो लाइट एनर्जी है, द लाइट एनर्जी इज मेड अप ऑफ द 7 कलर्स एंड द 7 कलर्स आर विबज्योर। इट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। द फोटोसिंथेसिस occurs maximum in blue and red regions of the light, in the blue and the red regions of the light. Factor 2, the temperature. The rate of photosynthesis increases by increase in temperature up to 40 centigrade temperature. अगर टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड तक रहता है तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज रहेगा, और फोटोसिंथेसिस इंक्रीज रहेगा तो प्लांट्स है वो हेल्दी रहेंगे। टेम्परेचर आज तक 40 सेंटीग्रेड ही था, बट हमने उसको 40 to 45 पे पहुंचा दिया है। हमने एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर दिया है बाय द एयर पोल्यूशन, by using more automobile, by using the more fossil fuels, the coal and petroleum, the level of CO2 is rising day by day. CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है तो अर्थ के ऊपर टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है इसीलिए डे बाय डे आपका फॉरेस्ट कवर भी डाउन होता जा रहा है। ये फैक्टर आपको बता रहा है। दैट इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड अबव दिस डिक्रीजेस। यहां से अगर आप अपना इंटेलेक्ट यूज करेंगे तो बाय द ह्यूमन इंटरवेंशन यू कैन एक्सप्लेन कि हमने हमारी गाड़ियां, स्कूटर्स, बाइक्स, कार से यूज करके हमने नेचर को डिस्टर्ब कर दिया है, हमने प्लांट्स को भी डिस्टर्ब कर दिया है। वो बेचारे प्लांट्स जिनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है, जिनके पास खुद का एक इंटेलेक्ट नहीं है, भगवान ने हमारे को एक नर्वस सिस्टम दिया है, एक इंटेलेक्ट दिया है, तो हमने उनको भी डिस्टर्ब कर दिया है, इसीलिए कोरोना आया है। आप यहां से बहुत कुछ समझ सकते हैं कि इंटेलेक्ट को वहीं पे काम लो जहां पे रिक्वायरमेंट है।
Factor third, the rate of photosynthesis increases by increasing the concentration of CO2 in the atmosphere if the light and temperature conditions are not limiting. मतलब CO2 का लेवल एक रेंज तक, एक ऑप्टिमम लेवल तक जाता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज होगा, रिक्वायर्ड साथ में कि लाइट और टेम्परेचर है वो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, मतलब उनको एक लिमिट में लेके. At the same time, very high concentration of CO2 becomes toxic to the plants and inhibits photosynthesis. Who is increasing the high level of CO2? We the human beings. हमने ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करके, ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स को यूज़ करके, एयर पोल्यूशन को इंक्रीज करके CO2 का लेवल बढ़ा के प्लांट्स को भी जहर दे दिया है. So these are the factors affecting the rate of photosynthesis. Water is an essential raw material for photosynthesis. इसके बिना photosynthesis possible नहीं है क्योंकि water एक universal solvent है. So this is all about the nutrition in plants. इस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा मैंने 2 लेक्चर्स को एक साथ कंपाइल करके करा दिया है क्योंकि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एक वो 1 शॉट में होना चाहिए था. अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप YouTube चैनल के ऊपर अपनी डाउट्स वगैरह लिख सकते हैं, हम डाउट्स का आपको रिप्लाई करते रहेंगे. सांकला क्लासेस के साथ में आप ऑनलाइन मोड पे एजुकेशन लेना चाह रहे हैं तो सांकला क्लासेस का ऐप है, आप प्ले स्टोर से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं. आप सांकला क्लासेस की साइट को विजिट करें, उसको एक्सप्लोर करें, यू नो रिगार्डिंग द डिटेल्स ऑफ सांकला क्लासेस. चैनल आपको हमारा पसंद आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन होता है उसको पुश करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे. और टेलीफोनिकली आपको कोई बात करना है तो स्क्रीन के ऊपर नंबर डिस्प्ले है. थैंक यू.